हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला, होपिंग वेल। सो जैसा कि कल मैंने सबको प्रॉमिस करा था, आई विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग विद अ न्यू LRDI सीरीज। एंड ये बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज है एंड विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज लाइक टिल कैट। ठीक है, इसमें हम सारे टॉपिक्स करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल्सो हम धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देर इज वन मोर सरप्राइज विद रिस्पेक्ट टू लाइक टेस्ट, राइट? सो विल ऑल्सो हैव अ वीकली टेस्ट, बट उस वीकली टेस्ट के बारे में मैं आपको थर्ड जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा। हाउ द टेस्ट विल बी कंडक्टेड, कहाँ पे कंडक्ट होगा, कैसे तुम्हें उसको लिखना है एंड उसका एनालिसिस या फिर जो सोल्यूशन है वो कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू हैव टू कनेक्ट विथ मी, तो ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर थर्ड वीडियो में इन डिटेल थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। Let's not waste time and actually kick off today's session. So, हमारा पहला वीडियो है and we are actually beginning with arrangements, right? So, we'll be doing a few session on arrangements. और arrangements में we'll be looking at linear arrangements also, circular arrangements also. We'll look at both of the kind of arrangements. ठीक है, and also as a general practice will always be actually like learning this particular topic या the topics to come through problems itself. ठीक है, we'll be taking up good problems, basic to advanced problems, and उसके through हम थोड़ा सा सीखना भी start करेंगे। थोड़े basics पे actually हम problems के through ही क्या करने वाले हैं, discuss करने वाले हैं। ठीक है, okay, so let's start with today's set. Let's first read this, right? Most important part with respect to solving a LRDI set is actually reading it very well. बहुत बार हम क्या करते हैं, assumptions लेते हैं, बहुत बार हम कोई statement skip कर देते हैं. So let's not make those kind of mistakes, rookie mistakes I would actually call it. And let's read this very carefully. Let's try to understand what is actually given. And if you want, if you're a veteran in this particular field, so you may want to pause this video right here itself. Try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right? But if you're like learning it for the first time, I would say watch this entire video. Okay? Along with me. Fine. So, kya diya hua hai? Let's understand this. So, there are four boys: Arun, David, Giri, and Kiran. Let's choose a good color. So four boys hai: Arun, David, Giri, and Kiran. And there are four girls: Prachi, Vaishali, Shivani, and Malini. Now a good thing about these names is ये जितने भी हमारे boys के names है, जैसे A है, D है, G है और K है, इनका initial like so starting alphabet is different. And the same is true for girls as well. In girls में भी जो हमारे चार नाम है, इनके initials it is different from these boys also, right? So good thing. So P, V, S and M लिख लिया हमने. Now, what did these 8 people do? They attended a program and were seated in the first row, which has 8 chairs. A standard linear arrangement problem, जहाँ पे एक लाइन में हमें चीजों को क्या करनी है, अरेंज करनी है, right? To be seated in the first row. So suppose I have, let's say, 8 places with me, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Suppose हमारे पास क्या है, 8 places है, 8 chairs are placed and इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है. Now we have the following 4 conditions. Let's read all these 4 conditions very carefully because इन्हीं में जो भी आपका clue होगा वो इन्हीं में छुपा होगा. So you'll have to deduce a lot of means. So first point क्या दिया हुआ है? No two girls sit together and each boy is adjacent to at least one girl. Let's break it down, right? Let's break it down statement by statement. दो हमारे पास sentences है, इनको देखते हैं individually. So देखो, arrangement अपने को करनी है, right? यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया, 4 boys हैं और 4 हमारे पास girls है. With respect to girls, we had a condition to begin with. No two girls sit together. इसका क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू दिस अरेंजमेंट इसका क्या मतलब निकल के आएगा? यार तुम्हारे पास 4 गर्ल्स है और इसमें कंडीशन है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कभी भी 2 गर्ल्स के बीच में, राइट? इफ आई लाइक रेफर द गर्ल्स एज सिंपली जी, ये जी ये वाला गिरी वाला जी नहीं है. सपोज मैं गर्ल्स को सपोज जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल में लिखता हूं, लेट्स से जी. सपोज मेरे पास 4 गर्ल्स इस लाइन पे कहीं पे बैठी हुई हैं, ठीक है, आई डोंट नो वेयर, बट बिकॉज इट इज सेइंग नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो एक बात की तो क्लैरिटी है कि कभी भी 2 गर्ल्स के बीच में अगर मैं नोटिस करूं तो एटलीस्ट एक तुम्हारा बॉय तो आना ही चाहिए. एटलीस्ट एक क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एक से ज्यादा आ सकता है, यू विल नोटिस इन अ व्हाइल, राइट? बट एटलीस्ट 2 गर्ल्स शुड बी सेपरेटेड बाई एटलीस्ट वन बॉय. तो इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए, इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एटलीस्ट एक बॉय होना चाहिए और इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एटलीस्ट एक बॉय मेरा होना चाहिए. बट देन वी हैड अ टोटल ऑफ व्हाट, 4 boys.
गर्ल्स कभी भी, कोई दो गर्ल्स हमारा साथ में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक बॉय होना चाहिए, राइट? ये हमारा कंडीशन था। बट यहां से अपने को समझ में आया कि बॉयज पे तो कोई कंडीशन नहीं है ना, दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय, एटलीस्ट एक बॉय होना कंपलसरी है, बट ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि दो बॉयज साथ में नहीं हो सकते, राइट? ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। बॉयज के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक कंडीशन है, ईच बॉय इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट वन गर्ल। मतलब हर बी के बगल में, हर एक बॉय जिसको हमने स्मॉल बी से रेफर किया हुआ है, हर एक बॉय के बगल में एटलीस्ट एक गर्ल आपकी आनी चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन वी हैव। तो अब देखो, एक चीज यहीं पे अपने को थोड़ा सा क्लियर करनी है। ये जो हमने अरेंजमेंट बनाया कि ठीक है चलो, गर्ल्स 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 एंड गर्ल्स, दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय एटलीस्ट, दो गर्ल्स के एक बीच में एटलीस्ट एक बॉय, एंड इन दोनों गर्ल्स के बीच में भी एटलीस्ट एक बॉय, तो तीन बॉयज तो तुम्हारे इस तरीके से प्लेस होने वाले। बट देन देयर इज अ फोर्थ बॉय ऑल्सो, एक चौथा बॉय है। तो अब तुम्हें ये सोचना है एंड थिंक इट वेरी लॉजिकली, जो हमारा चौथा बॉय है वो कहां आ सकता है। तो जब आप ये सोचना स्टार्ट करोगे ना, जब आप इसको पेपर पे स्क्रिबल करोगे, दैट दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, बिकॉज ऐसा इसने कहीं मना नहीं करा है कि दो बॉय साथ में नहीं हो सकते। आई कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द फोर्थ बॉय। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बोले तो फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हैव द फोर्थ बॉय हियर, लेट्स से यहां हो सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और लेट्स से स्टार्टिंग में ना हो के अगर मैंने उस लेट्स से लास्ट वाले बॉय को हमने इधर रखा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एटलीस्ट फॉर नाउ। also there are also more case possible, for example बीच में यहां पे दो बॉयज आ गए, that can happen। और लेट्स से यहां पे दो बॉयज आ गए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और यहां पे बीच में इन दोनों के दो बॉयज आ गए, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और ये समझो, ये बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज ये कंडीशन जो सेकंड वाला पार्ट है, जो तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि ये कैसे वैलिड है, तो ये भी वैलिड है ना। अगर आप चेक करके देखो, ईच बॉय इज एडजेसेंट टू एटलीस्ट वन गर्ल। कोई सा भी केस अगर तुम बनाओ, चाहे इधर रखो चाहे तुम इधर रखो, बीच में यहां दो रखो या फिर यहां दो रखो, यहाँ पे दो रखो, हमेशा हर बॉय के बगल में एटलीस्ट एक गर्ल आएगी ही आएगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे बॉय होता तो उसके बगल में ये गर्ल है। अगर ये बॉय देखो, जैसे अगर ये दोनों बॉय तुमने यहाँ पे रख दिए, इसके बगल में एटलीस्ट एक गर्ल होना चाहिए ना, तो ये गर्ल है, राइट? इस वाले बॉय के एडजेसेंट एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, तो इस बॉय के एडजेसेंट ये वाली गर्ल है। इस बॉय के बगल में ये, इस बॉय के बगल में ये, यहाँ अगर आया बॉय तो उसके बगल में ये, अगर ये बॉय है तो इसके बगल में ये, और यहाँ पे अगर बॉय आता है इसके बगल में भी ये गर्ल। तो तुम बॉय जो तुम्हारा चौथा बॉय है ना, तो उसको तुम कहीं पे भी रखोगे तो वो सेकंड वाला कंडीशन तुम्हारा एक्चुअली में क्या रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, राइट? ये है हमारा एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा हम इसको आराम से करके चल रहे हैं ताकि तुम्हें बहुत क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? इस टाइप का कभी भी सेट आया तो तुम इसको डील कर पाओ। तो अभी फॉर नाउ आई कैन विजुअलाइज दिस, बट मेरा फोर्थ बॉय की डेफिनेटली मेरे पास पॉसिबिलिटीज है, और वो मुझे समझ में आएगा आगे के कंडीशंस पढ़ के कि यार दो बॉय साथ में होने हैं या फिर नहीं होने, और होंगे तो कहां पे होंगे, या फिर बॉय हमारा स्टार्टिंग एंड एंड में होंगे, बिकॉज ऑल द केसेस आर एटलीस्ट पॉसिबल राइट नाउ। सो फर्स्ट कंडीशन हमने कंप्लीटली पढ़ ली है, आई जस्ट टिक ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट। आई होप ये सबको क्लियर है। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेकंड कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, प्राची इज एडजेसेंट टू डेविड and Vaishali is to the immediate left of Kiran. Let's try to write it down somewhere, right? ये तो स्टेटमेंट है। जब भी आप कोई लीनियर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो छोटे छोटे अपने सिंबल्स के टर्म्स में छोटे छोटे अल्फाबेट्स यूज करके सिंबॉलिकली आप कंडीशन को रिप्रेजेंट करने की आदत डालो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सेकंड पॉइंट को अपने सिंबल शब्दों में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्राची इज एडजेसेंट टू डेविड। नाउ लेट्स नॉट गो फॉर अजम्पशंस, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है प्राची इज एडजेसेंट टू डेविड। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्राची एंड डेविड, लेट्स कॉल देम पी एंड डी। तो पी एंड डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, आजू बाजू हैं, एक दूसरे के बगल में है। बट कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है, दैट आई डोंट नो। सो एक्चुअली में प्राची इज एडजेसेंट टू डेविड के दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इट कुड बी पी फॉलोड बाई डी, और इट कुड बी डी फॉलोड बाई पी। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, राइट? इस फर्स्ट वाले पॉइंट का ये मीनिंग निकल के आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, एंड वैशाली इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ किरण। नाउ वैशाली इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ किरण। नाउ किरण के इमीडिएट राइट में कौन है, वैशाली है। तो के फॉलोड बाई वी ही होगा। यहां पे अदर पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट कैन नॉट बी वी फॉलोड बाई के, बिकॉज यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है वैशाली इज टू द ऑल्सो इमीडिएट राइट लिखा हुआ है। तो के जस्ट बाद राइट हैंड साइड में कौन आ जाएगा तुम्हारा, वी आ जाएगा, राइट? दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन वी हैव।
दैट इज डन विद द सेकेंड पॉइंट, ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। अरुण एंड गिरी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगेन सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना कि अरुण एंड गिरी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक। तो इसका मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कौन लेफ्ट में और कौन राइट में है। इसका सिर्फ इतना मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये अरुण एंड गिरी विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। नाउ इट कुड बी ए फॉलोड बाय बी, सॉरी जी, और इट कुड बी जी फॉलोड बाय। आई मेरी बात समझ में? ए फॉलोड बाय जी भी हो सकता है या फिर तुम्हारा जी फॉलोड बाय ए भी हो सकता है। अभी इसका एक और लाइक मेन क्रक्स है, इस पॉइंट से एक और हम डिडक्शन निकालेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। होपफुली तुम्हें दिख भी गया होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार मैं थर्ड पॉइंट के बाद में फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेता हूँ, देन आई एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग सिंपल डिडक्शंस आउट ऑफ दिस, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हमने कर लिया, लिख भी लिया है साइड में। अब एक काम करते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? शिवानी इज नॉट एट एनी एंड। क्या मतलब हुआ? शिवानी एक्चुअली अ गर्ल इज नॉट एट एनी एंड। तो लाइक फर्स्ट पोजीशन पे भी शिवानी नहीं है और लास्ट पोजीशन पे भी शिवानी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट शिवानी एंड दिस इज ऑल्सो नॉट शिवानी। शिवानी इज नॉट एट एनी एंड, आइदर ऑफ द एंड्स। एंड वैशाली is to the left of David but not adjacent to him. Now we have to read this very carefully. जब ये बोल रहा है ना वैशाली इज टू द लेफ्ट ऑफ डेविड, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ ये बोल रहा है कि वैशाली जो है वो डेविड के लेफ्ट में है। V इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ D। अब जब ये बोला जाता है यार V इज टू द लेफ्ट ऑफ D, इसके ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है V हमारा इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D हो सकता है V और D के बीच में एक स्पेस हो, मतलब कोई एक और पर्सन आ जाए। हो सकता है V और D के बीच में दो लोग आ जाए। सो वी कैन हैव मल्टीपल केसेस फ्रॉम हियर। जब सिर्फ इतना बोला जाए V इज टू द लेफ्ट ऑफ D, बट आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज इस स्टेटमेंट में एक पॉसिबिलिटी उसने रिमूव करा दी है लिख के, बट नॉट एडजेसेंट टू हिम। सो वी हमारा डी के लेफ्ट तो है बट उसके क्या है, एडजेसेंट नहीं है। सो डेफिनेटली ये वाला केस तो हमारा क्या है, रूल्ड आउट है। इनके अलावा ये वाले सारे हमारे पॉसिबल केस हो सकते हैं, उनके बीच में एटलीस्ट एक पर्सन तो आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, और भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि वो दोनों को हम कहां पे प्लेस करने वाले। राइट, आई होप यहां तक के सारे स्टेटमेंट सबको एकदम क्लियरली समझ में आ गए। अब देखो ये कंडीशंस तो आपने पढ़ ली, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा? सम डिडक्शंस, वी हैव टू लाइक मेक आउट वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शंस फ्रॉम हियर। सबसे पहला डिडक्शन, अगर लाइक से याद करो, हमारा इनिशियल प्रॉब्लम यहीं पे फंसा हुआ था, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि कभी भी दो गर्ल्स के बीच में एटलीस्ट एक बॉय आएगा, तो चार गर्ल्स वुड बी सेपरेटेड बाई लाइक वन वन बॉय एटलीस्ट। बट हमने ये पता है ना कि यार जो चौथा बॉय था उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, या तो चौथा बॉय इधर आ जाए या फिर इधर आ जाए, या बीच में ये जो तीन जगह है जहां पे हमने बी लिखा हुआ है वहां पे दो दो बॉयज आ जाए। ऑल दीज आर पॉसिबल केसेस। अब एक चीज आपको यही चीज इंडिकेट करने वाला है कि कौन सा केस बनने वाला है। तो एक्चुअली में हमें जाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्यों गया, थोड़ा अब इसको समझते हैं। ये रैंडम दो लोग नहीं है। अगर मैं नोटिस करूं ए और जी, या जी और ए जैसा भी आप लिखना चाहो, ए और जी अगर नोटिस करो, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली बॉयज। ये सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि ये जो ए और जी है, दैट इज अरुण एंड गिरी, ये दोनों ही क्या है, बॉयज है। तो मतलब हमें इनडायरेक्टली कंडीशन दिया हुआ है कि ये ए और जी विच आर एक्चुअली टू बॉयज, दीज टू बॉयज आर सिटिंग एट एडजेसेंट पोजीशन। तो मतलब ये जो मैं बार बार आपको लेके जा रहा हूं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि दो बॉयज साथ में बैठेंगे ही बैठेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता फिर अब कि यहां पे बॉय आ जाए या फिर यहां पे बॉय आ जाए, बिकॉज या तो यहां रखोगे या तो यहां रखोगे, चार बॉयज कंप्लीट, बट फिर दो बॉयज साथ में आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कंडीशंस गिवन। इसका मतलब अगर दो बॉयज साथ में आने हैं तो या तो यहां पे बीच में दो बॉयज होंगे, वो नहीं पता अपने को, या फिर यहां पे होंगे दो बॉयज या फिर यहां पे होंगे। दैट एक्चुअली टेल्स मी कि फर्स्ट और लास्ट, मतलब यहां पे और यहां पे तो कोई बॉय आने नहीं वाला है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग अब निकल के आ रहा है कि द फर्स्ट पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ गर्ल। मैं स्मॉल जी डाल दे रहा हूं, राइट। द फर्स्ट पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ गर्ल एंड द लास्ट पोजीशन विल ऑल्सो बी ऑक्यूपाइड बाय अ गर्ल। ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि दो बॉयज साथ में बैठने हैं। अब दो बॉयज बीच में ही साथ में बैठ सकते हैं बिकॉज तीन बॉय यहां पे प्लेस्ड है और एक ही बॉय तुम्हारा और आना बाकी है। सो
या तो यहाँ पे दो बॉयज हो जाएंगे, या तो यहाँ हो जाएंगे, या फिर यहाँ हो जाएंगे। इधर और इधर नहीं हो सकते, बिकॉज अब इस गर्ल के राइट में कोई नहीं आ सकता और इस गर्ल के लेफ्ट में कोई नहीं आ सकता। दैट एक्चुअली टेल्स मी और हिंट्स में कि द फर्स्ट पोजिशन विल बी स्टार्टेड बाय अ गर्ल एंड द लास्ट पोजिशन विल ऑल्सो बी एंडेड बाय अ गर्ल इटसेल्फ। राइट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया कि गर्ल से स्टार्ट होगा और गर्ल पे क्या होगा, एंड होगा। अच्छा, अब क्या मैं ये भी सोचना स्टार्ट कर सकता हूं कि ये जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे जो हमने दो गर्ल्स बैठाई हैं, ये कौन से दो गर्ल्स हो सकते हैं? बिकॉज चार ही तो हमारे पास गर्ल्स हैं, पी है, वी है, एस है और एम है। चार ही पॉसिबल गर्ल्स हैं। तो सोचते हैं जरा यहां पे कौन से मेरे दो गर्ल्स हो सकते हैं। राइट, इसके बारे में सोचना हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज, इन चार में से ये दो पोजीशन के लिए जो दो गर्ल्स आपको चाहिए, इसमें से एक पॉसिबिलिटी तो उसने पहले ही मना कर रखी है, एस नहीं हो सकता। राइट, द स्टार्टिंग पोजीशन इवन इफ इट इज अ गर्ल इट कैन नॉट बी एस, एक पॉइंट में हमें क्लियरली दिया हुआ था। एंड लास्ट पोजीशन पे भी एस नहीं हो सकती। तो एस कैन नॉट बी एट द एक्सट्रीम्स, राइट? सो इट हैज टू बी टू पीपल आउट ऑफ पी, वी एंड एम। राइट, इनमें से ही हमारा कोई होना चाहिए, पी, वी और एम में से हमारा कोई होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखते हैं जरा कौन हो सकता है। अब इन कंडीशंस में ही सब कुछ छुपा होगा ना। अब इन कंडीशंस में अगर नोटिस करना स्टार्ट करो, ठीक है, हमने एस की पॉसिबिलिटी हटा दी। लेट्स लुक एट फॉर वी। क्या वी हो सकती है यहाँ पे? अब नोटिस करो, वी के लिए अगर मैं ऐसे सोचूं कि क्या यहाँ पे वी या फिर यहाँ पे वी हो सकती है, दोनों पॉसिबल केसेस हम चेक करेंगे। क्या वी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। अगर तुमने वहां पे वी प्लेस करा तो तुम्हारे पास ये जो कंडीशन है कि k हैज टू बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v, वो कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी बिकॉज v इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। इसके बगल में तो k के लिए पोजीशन है ही नहीं ना। सो दैट इज नॉट अ फीजिबल केस और दैट इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो एक पॉसिबिलिटी तो हट गई कि जो अगर लेट से v को आना है तो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे v नहीं आ सकती। कैन वी कम हियर? कैन वी कम हियर? थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या हम v को यहां पे रख सकते हैं? द आंसर शुड बी नो। अब यहां के लिए क्यों मना कर रहा हूं? वी यहां पे रखे, यहां पे के आ तो सकता है। प्रॉब्लम इज विद दिस कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन मेरे को क्या बता रहा था, वी इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो अगर वी तुमने यहां पे रखा, इसका मतलब डी वी के राइट में आएगा ना। बट वी तो एक्सट्रीम राइट पे तुमने रख दिया, इधर डी के लिए पोजीशन तो है ही नहीं ना। एंड हेंस वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि v जो है, राइट, इट कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस ऑल्सो एंड इट कैन नॉट कम एट द लास्ट प्लेस ऑल्सो। राइट, सो v भी हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, यहां से एलिमिनेट हो जा रहा है। वो जो दो हम गर्ल्स ढूंढ रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग और एंड पे है, इट कैन नॉट बी v ऑल्सो। एस नहीं हो सकती थी, डायरेक्टली मना किया था। v हमने कंक्लूड करा है फ्रॉम दीज कंडीशंस इटसेल्फ। अब इसका मतलब फिर ये निकल के आता है कि ऑब्वियसली फिर हमें जो दो गर्ल्स चाहिए जो स्टार्टिंग और एंड में बैठेंगे, इट हैज टू बी पी एंड एम। तो पी और एम ही हमारी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आने वाले हैं। अब उनमें भी तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आएगा। दैट इज व्हाट लीनियर अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट। कभी कभी आपको यूनिकली कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल रहा तो आपके पास कंडीशन होंगे, उनको आपको चेक करना पड़ेगा। नो, मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा कि मेरा इस फर्स्ट पोजीशन पे पी आ सकता है या फिर एम आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। क्या मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है? तो जरा एक बार चेक करते हैं। मान लो मैंने बोला कि इस पे पी है और इस पे सपोज एम है। कैन आई हैव दिस केस? अब पी के अराउंड जितने भी तुम्हारे कंडीशंस है ना, उनको जरा पहले यहां पे प्लेस कर लो। तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा कंडीशन दिखेगा कि पी एंड डी हैव टू बी एडजेसेंट। ये हमारे पास कंडीशन था ना, ये प्राची इज एडजेसेंट टू डेविड। अब अगर हमने तुमने पी को फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा डी को यहां पे आना पड़ेगा, because P and D have to be adjacent, but that is actually going to create a problem. वही सेम फेमिलियर, ये V is to the left of D, because अगर यहाँ D है और यहाँ पे P है, तो D के लेफ्ट में V के लिए तो कोई स्पॉट है ही नहीं ना, we don't have any place here। तो ये कंडीशन तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। दैट फाइनली टेल्स मी कि वो ऑर्डर क्या होने वाला है, कि पी और एम तो बैठेंगे फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे, बट किस ऑर्डर में बैठेंगे, नाउ आई एक्चुअली नो। तो यहाँ पे पी नहीं है, पी हैज टू कम हियर एंड ऑटोमेटिकली फिर हमारा ये जो एम है, दूसरी गर्ल है, वो ऑटोमेटिकली फिर यहां बैठ जाएगी। वन प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। ठीक है, नाउ अब P के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है, पहले तो मैं उसको प्लेस कर लूंगा। क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है कि P एंड D हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ये भी समझना। तो P एंड D हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, D आ जाएगा। एंड दिस D इज डेफिनेटली अ व्हाट, बॉय। तो D हमारा क्या है, एक बॉय है।
ये क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और तुम्हें पता है कि हमें ये समझ में आ चुका था कि यार दो बॉयज साथ में होने वाले हैं फ्रॉम दिस कंडीशन, ए एंड जी हैव टू बी टुगेदर, राइट? वो दो बॉयज हमारे ए और जी होंगे जो साथ में होने वाले हैं। नाउ ए और जी साथ में होंगे ना, इस डी हु इज एक्चुअली अ बॉय, इसके बगल में तो बॉय नहीं आएगा ना, बिकॉज सिर्फ एक ही बार ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों बॉय साथ में बैठे हो। और वो कौन दोनों बॉयज हैं वो मुझे पता है, स्टार्टिंग से ए और जी हैं इन सम पॉसिबल ऑर्डर। तो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि इस डी हु इज एक्चुअली अ बॉय, इसके बगल में, इसके लेफ्ट साइड, इट कैन नॉट बी अ बॉय, इट कैन नॉट बी अ बॉय। सो डेफिनेटली फिर यहां पे कौन है? एक गर्ल है। और ये गर्ल है तो डेफिनेटली एक और चीज क्लियर है कि यहां पे डेफिनेटली क्या आने वाला है? एक बॉय आने वाला है। यहां पे भी इस गर्ल के बगल में भी नोटिस करो तो गर्ल नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली यहां पे भी क्या आएगा? एक बॉय आएगा। बट अब देखो यहां पे इतनी तेजी से काम नहीं करते हैं, यहां पे एक थोड़ा सा पॉज लेना और समझना कि वो जो दो बॉयज है ना, हो सकता है ये बी और बी हो और यहाँ पे गर्ल, और इट कुड बी बोथ दीस बी, ये दोनों बी हो जाए और यहाँ पे गर्ल हो जाए। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास दोनों पॉसिबल आउटकम है, ठीक। लेकिन अब हमारे पास काफी कुछ यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और कंडीशंस हम एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें एक चीज और क्लिक होगी कि डी के लेफ्ट में कहीं पे वी आनी है ना? ओवरऑल हमारे पास चार गर्ल्स है, एक एम यहाँ पे प्लेस्ड है, एक पी यहाँ पे प्लेस्ड है ना, दो जी यहाँ पे प्लेस्ड ऑलरेडी है। इस डी हु इज अ बॉय, इसके बगल में गर्ल आनी है, बट वी जो कि एक गर्ल है वो मुझे पता है इज नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यही हमने बोला था, उसके लेफ्ट में है बट इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं है। तो यार अगर तुमसे ये पूछा जाए कि यहां पे फिर कौन सी गर्ल की चॉइस बची? एम और पी है नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, राइट? एम और पी है नहीं, वी आ नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यहां पे कौन प्लेस होने वाली है? एस प्लेस होने वाली, राइट? यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? एस आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इट इज एस नाउ। अब इसके बगल में एक बॉय है और हमें पता है कि कहीं पे एक गर्ल प्लेस होनी है, राइट? कहीं पे एक गर्ल प्लेस होनी है, और वो गर्ल कौन सी है वो भी अपने को पता है बिकॉज एस हमने प्लेस कर ही लिया है। नाउ वी एक्चुअली नो कि कहीं ना कहीं आपका वी प्लेस होना है। अब देखो, सिर्फ एक लास्ट सीक्वेंस इसमें बचता है और सिर्फ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसमें आपका डिमांड करेगा। ये डिमांड कैसे करेगा? हमें ये पता है कि ये जो वी है, ये जो गर्ल है, वो या तो यहां पे होगी इस जगह पे, या तो फिर वो यहां पे होगी। अब तुम्हें बस ये चेक करना है, राइट? तुम्हें एक्चुअली में बस ये चेक करना है कि हम उसको कहां पे रख सकते हैं, राइट? कैन वी कीप वी, लेट्स से हियर, और वी कैन कीप वी, दैट्स द रिमेनिंग फोर्थ गर्ल हियर। तो अब चेक चेक करते हैं, तो वो मैं कलर चेंज करके करता हूँ समझाने के लिए। लेट्स, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे वो गर्ल है जो कि लास्ट वी है, और लेट्स से यहाँ पे हमारा फिर बॉय आ जाएगा बिकॉज एक दो तीन चार हमारे गर्ल्स हैं। अगर ये जी है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे किसको फिट करने वाले हैं? हम वी को। और वी के करस्पॉन्डिंग कंडीशन है कि वी के जस्ट बगल में क्या आना चाहिए आपका? के आना चाहिए, वो भी आ गया। एंड ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारे पास दो ही बॉयज बचे हैं, और वो दो बॉयज हमें पता है कौन आने वाले हैं? ए और जी आने वाले हैं। वो हमें पता है कि कौन आने वाले हैं? ए और जी आने वाले हैं। इसका मतलब ये जो दोनों पोजीशन है इसमें हमारे ए और जी को हम प्लेस कर सकते हैं इन एनी पॉसिबल ऑर्डर। उसके लिए फिलहाल मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, आई डोंट हैव एनी कंडीशन जो मेरे को ये बता दे कि इन दोनों में क्या पॉसिबल ऑर्डर है। सो दैट इज द एक्सट्रीम विच वी कैन एक्चुअली डू। ये हमें एक बिल्कुल क्लियर कट केस मिल रहा है। अब ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, तो होपफुली दिस शुड आंसर माय प्रॉब्लम्स। तो मैं दूसरा केस एक बार लेके आपको समझा दे रहा हूं कि दूसरे केस में फिर प्रॉब्लम कहां पे आ रहा होगा। तो देखो जल्दी से, अगर हम दूसरा वाला केस भी बनाते हैं लेट से, तो यहाँ पे हमने एम रखा, यहाँ पे हमने पी रखा था, यहाँ पे हमने डी रखा, यहाँ पे हमने एस रखा, ठीक है? दिस वाज अ गर्ल, दिस वाज अ गर्ल, दिस वाज अ बॉय, एंड दिस वाज लेट्स से अ गर्ल, ठीक है? और बीच की एक, दो, तीन, चार पोजीशंस हमारे पास थी, राइट? ये हमारे पास क्या थी? चार पोजीशंस थी। और इस जी के बगल में डेफिनेटली फिर बॉय आना था, और इधर भी हमारा क्या? बॉय आना था। हमने क्या अज्यूम करा था कि यहाँ पे वो गर्ल है, लेट्स से बी। अगर सपोज यहां पे आई होती, सपोज वो गर्ल दैट इज वी, तो यहां पे फिर डेफिनेटली फिर किसको आना पड़ता? बी को आना पड़ता। बट यहां पे फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वी के इमीडिएट लेफ्ट में तो फिर के बैठेगा, बट फिर नोटिस करो ये जो हमारे दो रिमेनिंग बॉयज हैं, दैट इज ए एंड जी, ये फिर हमारे एडजेसेंट नहीं रह जाएंगे, एंड दैट इज वेयर दिस सेकंड केस इज एलिमिनेटेड। बिकॉज अगर आप इस केस में ए और जी को प्लेस करोगे
तो ए और जी फिर यहाँ पे आएंगे ना इन सम पॉसिबल ऑर्डर, बट ये तो उसने मना कर रखा है बिकॉज उसने ये बोल रखा है कि ए एंड जी हैव टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर, एंड हेंस फाइनली वी कैन से कि ये जो हमने पहला केस एक्चुअली में बनाया है, दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट केस, right? And this arrangement will actually help me in answering all the three problems. Now, with respect to like, I would also comment on the difficulty of this particular set. अगर difficulty के terms में देखोगे, these are easy to moderate set. इसके जो भी की पॉइंट्स थे, जिस तरीके से इसको इवेल्युएट करना है, जिस तरीके से इसको रीड करना है, वी हैव वेरी केयरफुली डिड्यूस दैट. बट एक एग्जाम के सिनेरियो में अगर आप इसको लाइक करने वाले हो तो इट शुड बी डन अराउंड दैट 10 मिनट्स मार्क. 10 मिनट के अंदर डेफिनेटली हमारा हो जाना चाहिए. दो तीन हमारे पास बस इंपॉर्टेंट चीजें थी. एक ये रियलाइजेशन की इसी तरीके से अरेंजमेंट होगा, एंड द फैक्ट कि इनिशियली हम वो बॉय को कहां प्लेस करें मेरे को नहीं पता, बट एज सून एज वी सी दिस कंडीशन कमिंग अप, दैट इज ए एंड जी विच आर एक्चुअली टू बॉयज, उन दोनों को साथ में होना है, तो डेफिनेटली फिर हमारा इन तीन जगह में कहीं पे दो बॉयज ऑटोमेटिकली फिट होंगे. तो स्टार्टिंग एंड एंड विल बी गर्ल्स, और उसमें बस आप स्टार्ट में फिगर आउट कर लो कि वो कौन सी दो गर्ल्स हो जाती हैं. उसके बाद सिर्फ आपकी यही तीन कंडीशंस आपको डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर पे लेकर चले जाएंगे. एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली सॉल्व अ लीनियर अरेंजमेंट प्रॉब्लम. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली. Now let's take a look at the questions also. So first question क्या है, the person who is sitting at the right end. So right end पे कौन बैठा है, this P, right, that is Prachi. Second, which among the following is a pair of persons who are definitely adjacent to each other. Definitely adjacent देखना है, तो M और A क्या definitely adjacent है, M और A definitely adjacent तो नहीं है, so this is eliminated. Arun and Vaishali, A and B. Are A and B definitely adjacent? I don't think so. Because A को यहाँ पे हम रख देंगे तब तो A भी adjacent है, but A can also come here. In that case, A B will not be definitely adjacent. So this is also out of the question. Shivani and Giri, S and G. Again, S and G are not definitely adjacent. It could be yes, it could not be yes. Right? So Shivani and Giri are also not definitely adjacent. Finally, Prachi and David, that is P and D. Yes. Prachi and David, उनकी positions fixed है already, so they are definitely what, adjacent. Answer is option D. And finally, the third question: how many persons are sitting between David and Kiran? David और किरण के बीच में, राइट, इन दोनों की पोजीशन फिक्स है, इसलिए आंसर बता सकते हैं. हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डेविड एंड किरण? सो डी और जी के बीच में कितने लोग हैं हमारे, 1 2 3 एंड 4. इररेस्पेक्टिव कि कौन कहाँ आएगा, ए एंड जी का ऑर्डर नहीं पता, बट हमें तो काउंटिंग पूछ रहा है. सो के और डी के बीच में एग्जैक्टली कितने लोग आएंगे, तुम्हारे 4 लोग आएंगे. राइट, एंड विद दैट वी आर एक्चुअली डन विद दिस पर्टिकुलर सेट. Right, so I hope you understood this particular set. And before I actually end this video, so I'll let you know about all the upcoming batches with us, right? So we are actually starting with a new CAT 25 batch. Pinnacle का batch हमारा start हो रहा है, right? इसकी starting date क्या है, 6th of February. तो अगर तुम CAT 25 के लिए prepare कर रहे हो और तुम आने वाला batch देख रहे हो हमारा, so it is actually starting on the 6th of February. Details तुम्हारी description में तुम्हें मिल जाएंगी. और अगर तुम लेट्स से अगर थोड़ा टाइम वेट नहीं करना चाह रहे हो 6th of February से, तो वी ऑल्सो स्टार्टेड विद आवर फिनिक्स बैच, राइट. फिनिक्स बैच हमारा इसी जनवरी के मंथ में स्टार्ट हुआ था ऑन द 6th of January. सम क्लासेस हैव बीन डन, बट उसको डेफिनेटली हम रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में कवर करके वी कैन कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस एज वेल, राइट. सो दीज आर द टू बैचेस जो चल रहे हैं. इफ यू वांट टू एक्चुअली स्टडी एलआरडी फ्रॉम मी, अगर तुम एक स्पेसिफिक एलआरडी का बैच देख रहे हो, राइट, सो देयर इज आल्सो एन एलआरडी बैच गोइंग ऑन. इसका भी स्टार्ट डेट आपका 7th of January था. इसको भी तुम डेफिनेटली इनरोल कर सकते हो. इसका भी लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा तुम्हें. एंड फाइनली महाराष्ट्र सीटी के लिए फिर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, तो 70 डे का कोर्स चल रहा है, राइट. इनकी स्टार्ट डेट आपकी 20th of January थी, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन very well. If you have any doubts with respect to this particular session, with respect to the set, right, any logic which you didn't really catch, you can definitely go ahead and ask in the comments. Thank you guys. We'll see you soon in the next video. इन क्लासेस का जो स्केड्यूल है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट. एवरी वीक देयर विल बी 3 सेशंस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा. रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको 11 बजे अपलोडेड दिखेगा, राइट. प्रीमियर होगा 11 बजे एग्जैक्टली, बट दीज विल बी इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. सो द डेज विल बी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, राइट, एट 11 PM.
एंड आई सून विल बी लेटिंग यू नो अबाउट द वीकली टेस्ट, वीकली फ्री टेस्ट भी करेंगे और उनका एनालिसिस हमारे ऐप पे भी होगा। सो उसकी भी उसका जो डिटेल होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एंड उसके बाद वाली वीडियो में आपको क्लियर कट समझा दूंगा। Right. So thank you guys. Thank you for joining. Please do not forget to share this particular session with all your CAT 25 preparing friends. Thank you. Bye.